بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقاب سلطان عماد الدین زنگی کے دور کی اولو الانگیز داستان، ایپیسوڈ نمبر 3۔ شام ہونے کو تھی۔ سورج دن بھر صحراؤں اور نخلستانوں کی فضاؤں سے جنگ کرتا ہوا مغرب کی طرف جھک گیا تھا۔ عامر کا چاچا عمرو بن کعب اپنے گھر کے سامنے کھجوروں کے جھاڑوں کی ایک چٹائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ سورج غروب ہوتے دیکھ کر وہ اٹھا اور چاہتا تھا کہ اپنی چٹائی سمیٹ کر اپنے گھر جائے کہ عامر کے ہاتھوں مار کھا جانے والے جابر کا باپ اسود بن علقمہ وہاں آ گیا۔ اسود بنو عبس کے معززین اور رؤساء میں سے تھا۔ دیکھتے ہوئے خوش آمدید لہجے میں کہا، آؤ اسود، آج کدھر آئے ہو؟ اسود بن علقمہ نے غصیلی آواز اور بھڑکتے لہجے میں کہا، میں تمہیں کی شکایت لے کر آیا ہوں۔ جبل بلال دمشق شہر کے مسافات میں ایک طویل کوہستانی سلسلہ ہے۔ اسود بن علقمہ رکا، پھر گونجتی آواز میں کہتا چلا گیا، بنو زیبان کے جوان درخت کاٹتے ہوئے اپنی حدود سے تجاوز کر رہے تھے۔ میرے بیٹے جابر نے للکار کر انہیں روکا، لیکن تمہارے بزدل بھتیجے نے بنو زیبان سے جنگ کرنے کے بجائے میرے بیٹے سے جنگ کی اور اسے خوب مارا۔ ابھی جا کر دیکھ لو، اس کی ماں اس کے دردوں پر سینگ کر رہی ہے۔ اس واقعے سے میرے گھر میں طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ میرا بڑا بیٹا مغیظہ تلوار سوچ کر میرے ساتھ آ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں عامر بن نافع کی گردن کاٹ کر رکھوں گا، لیکن میں نے بڑی مشکل سے اسے پرامن کیا اور گھر میں اسے اس کے دوسرے بھائیوں کے پاس بٹھا کر آیا ہوں۔ اس بزدل کو باہر بلاؤ تاکہ میں اس سے باس پرس کر سکوں کہ اس نے آج میرے بیٹے پر کیوں ہاتھ اٹھایا۔ عمرو بن کعب نے منت کرنے کے انداز میں کہا، میں خود عامر کی بعض حرکتوں کو ناپسند کرتا ہوں، لیکن تم آہستہ بولو، میں وعدہ کرتا ہوں میں اسے سمجھا دوں گا۔ اسود نے زور سے گرجتے ہوئے کہا، میں آہستہ کیوں بولوں؟ کیا میں نافع کے بیٹے سے ڈرتا ہوں؟ یا وہ قبیلے کا سردار ہے کہ اس کا اتباع مجھ پر واجب ہے؟ اسے اچھی طرح سمجھا دینا کہ اگر وہ دمشق شہر میں رہتے ہوئے بزدل ہو گیا ہے اور بنو زیبان سے جنگ کرتے ہوئے خوف زدہ ہے تو باہر نکلنے کے بجائے چوڑیاں پہن کر اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ ہم بنو زیبان سے نپٹنا خوب جانتے ہیں۔ اس کا باپ بھی بزدل تھا، بزدل نہ ہوتا تو اپنے قبیلے سے نکل کر دمشق شہر میں آہنگری کا پیشہ نہ کرتا۔ عمرو بن کعب نے اس بار متلجی لہجے میں کہا، اسود بات کو طویل نہ دو، عامر اس وقت گھر پر ہے، اگر اس نے یہ بات چیت سن لی تو طوفان اٹھ کھڑا ہوگا۔ میں تم سے اس کی غلطی اور رویے کی معافی مانگتا ہوں۔ اسود بن علقمہ کھڑا ہو گیا اور گرج کر کہا، اس کو سمجھا دو کہ اپنے آپ کو بدل لے، ورنہ اسے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ جس طرح دمشق شہر والوں نے تنگ آ کر اسے نکالا ہے، ہم بھی اسے اپنے قبیلے سے بدر کر دیں گے، اور یہ قدم اس کے لیے ہی نقصان دہ نہیں، تمہارے لیے بھی افسوسناک ہوگا۔ اس لیے کہ اسود بن علقمہ اپنی بات مکمل نہ کر پایا تھا کہ عامر غصیلے اور غضبناک حالات میں گھر سے نکلا اور چلاتے ہوئے کہا، اسود، میں نے مکان کے اندر رک کر بڑے صبر اور تحمل سے تمہاری گفتگو سنی ہے۔ تم نے مجھے اور میرے باپ کو بزدل کہہ کر پکارا ہے۔ دوبارہ یہ الفاظ اگر تمہاری زبان پر آئے تو یاد رکھو، تمہاری یہ گندے اور ناپاک زبان میں کاٹ کر تمہاری ہتھیلی پر رکھ دوں گا۔ اسود بن علقمہ نے بھی منہ سے جھاگ چھوڑتے ہوئے غصے میں کہا، تم نے بنو زیبان کے جوانوں سے معاملہ طے کرنے کے بجائے آج میرے بیٹے کو بلا وجہ مارا ہے۔ اگر تم بنو زیبان سے ڈرتے ہو تو گھر میں پڑے رہو، ہم تمہاری حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ عامر نے تنزن کہا، اس قدر بڑی عمر کے ہو کر تمہیں شرم تو نہیں آتی ہوگی کہ تمہارے بیٹے اور تم بہادر ہو اور شجاع ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اور تم اس شخص کو بزدل کہہ کے پکار رہے ہو جس نے تمہارے بیٹے کو مارا۔ تمہاری سمجھ کہاں چلی گئی ہے؟ تمہارا شعور کہاں کھو گیا ہے؟ اسود، میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، تم اور تمہارے بیٹے بنو زیبان کے ساتھ جنگ کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہو، اور لڑائی کے دوران تم سب سے پہلے فرار ہونے کے لیے پیچھے رہتے ہو۔ میں تمہاری خسرت اور خود کو سمجھتا ہوں۔ تمہارا بیٹا جابر آج بغیر وجہ سے بنو زیبان سے الجھنا چاہتا تھا، لیکن اس میں بھی تم جیسا مکار اور عیار خون گردش کرتا ہے، لہٰذا اس نے بھی تمہاری طرح مجھے بزدل کہہ کر پکارا۔ میں نے 2 بار اسے برداشت کیا اور تیسری بار میرا ہاتھ اس کی گردن پر تھا۔ اسود، آئندہ کبھی بھی مجھے اور میرے باپ کی بزدلی کا تانا نہ دینا، ورنہ تیری گندی زبان کاٹ کر رکھ دوں گا۔ تم بنو عبس میں سے کوئی بھی جوان میرے سامنے لے آؤ، اگر کوئی مجھے مات کر دکھائے تو میں اپنا قبیلہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اسود بن علقمہ اس بار
शर्मसार होकर बोला, कबीले के जवान अपनों से नहीं लड़ते, तेरे बरअक्स वो बनो ज़िबान से अदावत का हक अदा करते हैं। तेरी तरह दुश्मनों के सामने अपनों से लड़कर नौयत का इजहार नहीं करते। आमिर ने फौरन अपनी तलवार बेनियाम कर ली और गुस्से में चिल्लाकर कहा, असवद तुम्हारा कोई हिमायती है तो उसे आवाज दे लो, मेरी तलवार तुम्हारी गर्दन पर बरसने लगी है। अगर बातें बनाने की तरह तुम जंगजू भी हो तो मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारी तलवार निकालने का मौका देता हूँ, मैं तुम्हें तलवार निकालने का मौका देता हूँ। तुम पर इब्लीस सी लानत, अगर तुम पर अपने बाप का नाचारा और लागारा जानते हो तो जाओ अपने किसी बेटे को बुला लाओ, मैं यही खड़ा होकर इंतजार करता हूँ। आमिर के हाथ में नंगी और चमकती हुई भारी तलवार देखकर असवद का रंग पीला पड़ गया था। वो खौफ और वहशत से पीछे हटने लगा था। आमिर जब और आगे बढ़ा तो आमिर का चाचा अम्र बिन काब दरमियान में आता हुआ बोला, आमिर आमिर तुम घर चले जाओ, मैं असवद को समझा लेता हूँ। आमिर ने गजबनाक आवाज में कहा, अरे मेरे आप पीछे हट जाइए, मैं इस शर पसंद का सर काट कर रखूंगा जो बनो अब्स और बनो ज़िबान में जुदाल और फिसाद की सबसे बड़ी और पुरानी जड़ है। इतनी देर तक घर से आमिर की अमजाद बहन उरूब और भाई अदनान भी भागते हुए बाहर आ गए थे। उरूब ने आमिर का बाजू पकड़ते हुए कहा, आखिर छोड़े इससे झगड़े को, आप घर चले। आमिर ने गुस्से में उरूब को एक तरफ हटा दिया था। अम्र बिन काब अभी तक दोनों के दरमियान हाइल था। उसकी एक तरफ गजबनाक हालत में आमिर था और दूसरी तरफ असवद बिन अलकमा जो खौफ से थर-थर कांप रहा था। आमिर ने जब उरूब को भी पीछे हटा दिया तो उरूब ने अपने भाई अदनान की तरफ देखते हुए कहा, या आखी इन्हें रोकिए वरना झगड़ा तूल पकड़ जाएगा। मेरा एक ही अमजाद है, उसे अगर कुछ हो गया तो मैं जिंदा न रह सकूंगी। अदनान ने फौरन आगे बढ़ा और आमिर का बाजू पकड़कर पीछे खींचने लगा। उरूब फौरन दोबारा फिर आगे बढ़ी और आमिर का बाजू पकड़कर उसने इस बार इंतहाई पुरदिल और दिल फिगार लहजे में कहा, आखिर खुदा के लिए घर चले, मैं आपकी वो बहन हूँ जिसका कहा आपने कभी नहीं टाला। क्या आप लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि उरूब बिन आमर अपने आमजाद के आगे ऐसी बेबस है कि उसका कोई वकार और इस्तक़लाल नहीं है। उरूब के इन अल्फाज ने खातिर खा असर किया। आमिर ने मज़ाहमत तर्क कर दी, अपनी तलवार उस नियाम में डाल ली और घर की तरफ चल पड़ा। उरूब और अदनान उसके साथ थे। असवद बिन अलकमा ने इस मौके को गनीमत जाना और फौरन वहां से खिसक गया। इस झगड़े और तकरार के बायस जो लोग वहां जमा हो गए थे वापस लौट गए। अम्र बिन काब भी सर झुकाए अपने घर की तरफ जा रहा था। अंदर आकर आमिर फौरन अपने घोड़े पर जेन डालने लगा था। अम्र बिन काब अदनान और उरूब हैरत और परेशानी से देख रहे थे। उरूब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और आमिर से वो कुछ पूछना ही चाहती थी कि अम्र बिन काब ने गरजते हुए आवाज में कहा, कहाँ जा रहे हो आमिर? कोई नया झगड़ा खड़ा करने से कबल ये सोच रखना कि मुझे में इतनी हिम्मत और क़ुव्वत नहीं कि मैं तुम्हारे खातिर कबीले में अपने दुश्मनों की तादाद में इजाफा करता रहूं। याद रखो, तुमने असवद बिन अलकमा के बेटे पर हाथ उठाकर गलती की है। तुम्हें चाहिए था कि जब उसके बेटे ने बनो ज़िबान के जवानों को ललकारा था तो तुम उसका साथ देते, जबकि तुम्हारे बाप के कातिल भी बनो ज़िबानी है। वलीद ने घोड़े का तंग कसते हुए कहा, आए अम्र, ये आपकी गलत फहमी है, कोई ज़िबानी मेरे बाप का कातिल नहीं। अम्र बिन काब नफरत और गुस्से का इजहार करते हुए कहा, तुम अपने बाप की तरह जिद्दी हो। अगर तुम्हारी यही अतवार रहे तो कबीले वाले तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। आमिर ने भी नरम लहजे में कहा, अगर कबीले वालों ने मुझे यहाँ से निकाल दिया तो मैं आपसे मदद की दरख्वास्त ना करूंगा। अल्लाह की ज़मीन बड़ी वसी है। अम्र बिन काब ने फैसला अपने अंदाज में कहा, अगर तुम कबीले की मर्जी के खिलाफ बनो ज़िबान की हिमायत पर तुले हो तो बेहतर है तुम अपने घर चले जाओ। यहाँ रहते हुए मेरे और तुम्हारे दरमियान तलखी और बेताल्लुकी की खलीज और उसी होती रहेगी। आमिर जवाब में कुछ कहने वाला था कि उरूब ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अरे मेरे बाप, अगर आपने अखी आमिर को यहाँ से निकाला तो मैं और अदनान भाई भी उनके साथ चले जाएंगे, फिर आप अकेले इस घर में रहिए। याद रखिए, जो बात भी मेरे भाई के खिलाफ हुई मैं उसे बर्दाश्त ना करूंगी। मेरा भाई इसी घर में रहेगा और मैं इसकी खिदमत करूंगी। अम्र बिन काब गुस्से में पाँव पटकता हुआ कमरे में चला गया। आमिर जब अपने घोड़े की बात पकड़कर बाहर जाने लगा तो उरूब ने दर्द भरी आवाज में पूछा, आए अखी, आप कहाँ जा रहे हैं? आमिर ने प्यार से उरूब के सर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम फिक्रमंद ना हो, मैं किसी से झगड़ा ना करूंगा। मैं जरा अपने बागात तक जा रहा हूँ, अगर हो सके तो मेरा सामान उठाकर मेरे घर में रख दो। मैं चाचा का दिल नहीं तोड़ना चाहता और फिर साथ वाला घर ही तो मेरा है, मैं कौन सा दूर होऊंगा। वहां रहते हुए भी तुम मुझे खाना पका कर दे सकती हो। इस बार अदनान ने मुतलज्जी लहजे में कहा, नहीं आमिर, तुम हमारे साथ रहो, बाबा की बातों का बुरा ना मानना, उनकी तरफ से माजरत खा हूँ। आमिर जब बाहर निकलने लगा तो उरूब ने कहा, अखी जल्दी आ जाना, जब तक तुम वापिस ना आओगे मैं और अदनान भाई खाना ना खाएंगे। आमिर ने एक बार नरमी और शफकत से उरूब की तरफ देखा, फिर अपना घोड़ा लेकर मकान से बाहर आकर सवार हुआ और घोड़े को ईड़ लगाकर वो दाएं तरफ दौड़ने लगा था।
अपने बागात में आकर आमिर ने घोड़ा इंजीर के एक दरख्त से बांध दिया और फिर बागात के अंदर बहने वाले चश्मे के पानी से वजू करने लगा था। ये पानी जबले बिलाल के चश्मों से आता था, जिनसे दोनों कबाइल के बागात और खेतियां सैराब होती थी, और जो बागात दरिया अबाना के किनारे थे उन्हें दरिया के किनारे कुएं खोद कर दरिया के पानी से भी सैराब किया जाता था। आमिर वजू करने के बाद मगरिब की नमाज अदा करने लगा था। नमाज से फारिग होकर आमिर ने अपना घोड़ा खोला, फिर वो घोड़े की बात पकड़े आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बागा से बाहर निकला और उस पगडंडी पर आ खड़ा हुआ जो दोनों कबीलों के दरमियान पड़ने वाली चरागाहों से होती हुए बनो ज़ेबान की बस्ती हुरान की तरफ चली गई थी। अंधेरा गहरा हो गया था और मशरिक की जानिब दरिया अबाना के इस पार कोहिस्तानों के पीछे से चांद नमूदार हो रहा था। वहां खड़े आमिर को थोड़ी देर ही हुई थी कि चांद ऊपर उभरा और हर चीज को अपनी ठंडी और सुहानी चांदनी में नहला गया था। इतने में बनो ज़ेबान की बस्ती हुरान की तरफ से आने वाली पगडंडी पर टापुओं की आवाज सुनाई दी थी। आमिर फौरन संभल गया और अपनी तलवार बेनियाम कर ली। शायद उसे खदशा था कि उसके साथ धोखा ना हो। थोड़ी देर बाद आमिर को जरा फासले पर 3 घुड़सवार आते दिखाई दे। वो अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते आ रहे थे। आमिर ने कुछ सोचा, फिर वो हरकत में आया। अपना घोड़ा उसने वही खड़ा रहने दिया और खुद वो छोटे कद के इंजीर के एक दरख्त के ओट में हो गया। थोड़ी देर तक वो तीनों सवार आमिर के घोड़े के पास आकर रुके और अपने घोड़ों से उतरकर परेशानी की हालत में इधर उधर देखने लगे। चांदनी रात में आमिर उन्हें पहचान गया। वो नकीब, वलीद और दमिश्क में रहने वाला आमिर का मुखलिस और हमदर्द दोस्त तबीब साद बिन हुर्रा थे। आमिर इंजीर के पौधे की ओर से बाहर निकलने ही लगा था कि वलीद ने उसे राजदारी से पुकारा, आमिर आमिर तुम कहाँ हो? आमिर फौरन ओर से निकल आया और आगे बढ़कर तीनों से बकलगीर हुआ। फिर उसने साद की तरफ देखते हुए पूछा, साद तुम यहाँ कैसे आए हो? साद ने दुख का इजहार करते हुए कहा, अफसोस मेरी गैर मौजूदगी में तुम पर क्या कुछ ना बीत गया। मुझे तुम्हारे बाप के मरने का इंतहा अफसोस है। मैं मदीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गया हुआ था। वहाँ मेरी नानी सख्त बीमार थी। वहां से मेरे मामू ने पैगाम भेजा था कि मैं अपनी माँ और बहनों के साथ जल्दी में गया था, लिहाजा जाते हुए तुमसे मिल ना सका। मैं कल ही वहां से लौटा हूँ। आज मुझे दमिश्क के साबिक मुहतसिब जमालुद्दीन से तमाम हालात का इल्म हुआ, लिहाजा मैं तुमसे मिलने तुम्हारे कबीले की तरफ रवाना हो गया। मैंने तुम्हारी बस्ती देखी हुई ना थी, लिहाजा गलती से मैं बनो ज़ेबान की बस्ती हुरान में दाखिल हो गया। वहाँ खुशकिस्मती से मेरी मुलाकात वलीद से हो गई। ये मुझे अपने घर ले गया और बताया कि आमिर आज रात उनके घर आने वाला है, हम उसे लेने जाएंगे। लिहाजा मैं वहाँ रुककर उनके साथ तुम्हें लेने चला आया हूँ। यहाँ आकर पता चला कि बनो अब्स और ज़ेबान में सख्त चकलनीश चल रही है, लेकिन मैं वलीद के बाप सालमा बिन उकबा से मिलकर इंतहाई तौर पर खुश हूँ। वो कबीले का सरदार है, लेकिन उसके ख्यालात बहुत सस्ता और पाकिज़ा है। वो दोनों कबीलों के दरमियान मुनाफरात को इंतहाई मुज़िर, नाकाबिल तलाफी नुकसान समझता है। साथ जब खामोश है तो वलीद ने नकीब की तरफ इशारा करके आमिर से कहा, क्या आप जानते हैं ये कौन है? आमिर ने जब नफीब में सर हिला दिया तो वलीद ने कहा, ये नकीब बिन हुर्रा है, हमारे कबीले के सबसे बहादुर और माहिर तेज़न और आपका ज़बरदस्त मद्दाह। आमिर ने एक बार मुस्कुराते हुए फिर नकीब से हाथ मिलाया। वलीद फिर बोला, अब आप हमारे साथ चलिए। आमिर ने चौंक कर पूछा, कहाँ? हमारे घर, मेरे बाबा ने आपको बुलाया है। आमिर ने इस्तिफहामिया लहजे में पूछा, क्यों बुलाया है मुझे? वलीद ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मालूम नहीं उन्होंने आपको क्यों बुलाया, लेकिन आप परेशान क्यों हो रहे हैं? क्या आपको हम पर एतमाद नहीं है, जबकि आपके दोस्त साद बिन हुर्रा भी हमारे साथ है? आमिर अपने घोड़े की तरफ बढ़ता हुआ बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कबीले में चलता हूँ। फिर वो सब अपने घोड़ों पर सवार हुए और चांदनी रात में उस तंग पगडंडी पर घोड़े दौड़ाने लगे जो चरवागाहों और जबले बिलाल की एक हिस्से के अंदर से गुजरने के बाद बनो ज़ेबान की बस्ती हुरान की तरफ चली गई थी। थोड़ी देर बाद वलीद उन्हें लेकर अपनी हवेली में दाखिल हुआ। आमिर ने देखा हवेली की सहन में वलीद का बाप और बनो ज़ेबान का सदर सालमा बिन अलकमा खड़ा था। उसके साथ अधेड़ सी उम्र का एक और आदमी भी था जिसे वलीद ना जानता था। वलीद जो ही घोड़े से उतरा, सालमा बिन उकबा आगे बढ़ा और आमिर को गले लगाते हुए कहा, मैं अपनी हवेली में नाफे के बेटे और अपने मुहसिन को खुश आमदीद कहता हूँ। फिर सालिम ने अपने साथ खड़े आदमी की तरफ इशारा करके कहा, ये नजर बिन असद एक ताजिर है, मेरे पुराने दोस्त है। ये गरबी शाम की एक सरहदी बस्ती के रहने वाले हैं और इसी बस्ती के सरदार भी हैं। किला हारम अर्ज़े शाम का एक मजबूत किला जिस पर दूसरी सलीबी दौर में ईसाइयों ने कब्जा कर लिया था। किला हिराम जो कभी मुसलमानों का था और जिस पर ईसाइयों ने पिछली सलीबी जंगों में कब्जा कर लिया था, उनकी बस्ती से नजदीक पड़ता है। आमिर ने आगे बढ़कर
बड़ी गर्मजोशी के साथ नजर बिन असद से मुसाफा किया। दाएं तरफ के कमरे में पर्दे के पीछे खड़ी नायरा बड़े शौक और मीठी निगाहों से आमिर को देख रही थी। सालिम आमिर का बाजू पकड़कर दीवान खाने में ले गया। नजर बिन असद, नकीब और साद और वलीद भी उनके साथ दीवान खाने में आकर बैठ गए थे। सालम ने गुफ्तगू की इब्तिदा करते हुए कहा, आमिर आमिर मेरे बेटे, मेरे मुहसिन, पहले तो मैं तुम्हारे बाप की मौत पर दिली सदमे का इजहार करता हूँ। मुझे तुम्हारे बाप की मौत पर सख्त कलक और तशवीश हुई। वो एक नेक खूब और सुलह पसंद आदमी था। आमिर की गर्दन झुक गई और उदास हो गया। चंद लम्हों तक कमरे में सुकूत रहा। फिर सालमा बिन उकबा ने दोबारा बोलते हुए आमिर को मुखातिब करके कहा, आमिर आमिर, नकीब और वलीद मुझे तुम्हारी आज की कारगुजारी बता चुके हैं। तुमने दोनों कबीलों के टकराव से बचाने के लिए जाबिर बिन असवद पर हाथ उठाकर साबित कर दिया है कि तुम एक अमन खौ और सुलह जो आपसी हो। आज से इस घर के दरवाजे खुदा वक्त तुम्हारे लिए खुले हैं। तुम, आमिर ने दरमियान में बोलते हुए कहा, आज के हादसे ने मेरे लिए मसाइल भी खड़े कर दिए। आज असवद बिन अलकमा ने मेरे चाचा से इस वाक़े की शिकायत की जिसके बायस मेरे और असवद के दरमियान तल्ख कलामी हुई। उसकी वजह से मेरा चाचा मुझसे नाराज हो गया और उसने मुझे यहाँ तक कह दिया कि बेहतर है कि तुम मेरे मकान से निकलकर अपने मकान में चले जाओ। वो मेरे चाचा के साथ वाला मकान मेरा है और वहाँ अकेले रहते हुए मुझे कोई तकलीफ ना होती, लेकिन मेरी अमजाद बहन और भाई आड़े आए। उन्होंने चाचा से कह दिया कि अगर मुझे इस घर से निकाला गया तो वो दोनों भी घर छोड़ेंगे। लिहाजा चाचा खामोश हो गया। सालिम बिन उकबा ने बड़ी शफकत से कहा, अमर बिन काब अहमक है जो अपने अमन पसंद भतीजे के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। बहरहाल तुम फिक्रमंद ना हो, अगर ऐसा कोई हादसा हो जाए तो सीधा मेरे यहाँ चले आना। यहाँ इस घर में तुम्हारी हैसियत एक फर्द सी होगी। सालम जब खामोश हुआ तो नजर बिन असद पहली बार मुखातिब हुआ, अगर यहाँ के हालात तुम्हारे हक में ना रहे तो मैं तुम्हें दावत देता हूँ, तुम सीधे मेरे पास चले आना। ईसाइयों का किला हरम हमारे नजदीक पड़ता है। वहाँ का ईसाई हकीम तीतुस अक्सर मुसलमान बस्तियों पर यलगार करके लूट मार कर बाजार गर्म कर देता है। तुम एक बहादुर और शुजा जवान हो। सालिम ने मुझे बताया था कि उसकी लड़की की इज्जत बचाते हुए तुम अकेले ने 4 आदमियों को मौत के घाट उतार दिया था। अगर तुम वहां आ गए तो मैं तुम्हारी रहनुमाई में मुसलमान नौजवानों को मुसलह कर तीतुस तुर्कताज को रोक दूंगा। आमिर ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर मुझे कभी वक्त मिला तो मैं जरूर आपकी तरफ आऊंगा। एक काम मेरे लिए एक सादत से करना होगा। नजर बिन असद फिर बोला, मेरी बस्ती का नाम असफीरा है और वो हल्ब और अंताकिया के दरमियान सरहद पर वाक़ है। आमिर खड़ा होता हुआ बोला, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। सालाम ने चमकते हुए कहा, यह क्यों कर हो सकता है? आज नसर बिन असद की हमारे यहाँ दावत थी। इस दावत में तुम्हें भी बुलाया गया था। तुम मेरी बेटी के मोहसिन हो। उसे खबर हो गई थी कि इस दावत में तुम भी शिरकत कर रहे हो। लिहाजा वो अपनी रिश्तेदार लड़कियों के साथ मिलकर बड़ी मेहनत से तुम्हारे लिए मुख्तलिफ नवा के खाने तैयार करती रही है। आमिर ने बेबसी का इजहार करते हुए कहा, मैं जरूर इस दावत में शिरकत करता, लेकिन मैं मजबूर हूँ। आज मेरा चाचा मुझसे खफा हुआ था तो मेरी अमजाद बहन और भाई ने मेरी तरफदारी कर दी थी। मैं जब इधर आने के लिए घर से निकला था तो मेरी बहन ने कहा था, जल्दी आना, जब तक आप ना आएंगे हम दोनों बहन भाई खाना ना खाएंगे। वो दोनों भूखे बैठे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर मैं यहाँ से खाकर गया तो उन्हें मायूसी होगी और मैं उनका सामना ना कर सकूंगा। सालिम बिन उकबा खड़ा हो गया और आमिर से मुसाफा करते हुए कहा, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, तुम्हें जरूर जानना चाहिए, वरना वो दोनों बहन भाई तुमसे मायूस हो जाएंगे। आमिर ने सबसे मुसाफा किया, फिर साहब की तरफ देखते हुए कहा, चलो मेरे साथ। सालम ने दरमियान में बोलते हुए कहा, आमिर तुम्हारे घरेलू हालात दुरुस्त नहीं है, बेहतर है तुम साहब को साथ ना ले जाओ, इसे यही रहने दो। आज की रात तुम्हारी जगह ये हमारा मेहमान होगा। साहब ने तायद करते हुए कहा, ये दुरुस्त है आमिर, मैं कल यहाँ से रवाना हो जाऊंगा, तुम फिक्रमंद ना हो, अब मैं तुमसे मिलता रहूंगा। आमिर ने साथ से भी मुसाफा किया और बाहर निकल गया। बनो ज़ुबान की बस्ती हुरान से निकलकर आमिर जबले बिलाल की उस तंग पट्टी में दाखिल हुआ जो हुरान के बिल्कुल करीब थी और बस्ती की कुछ घर पहाड़ी सिलसिले से बिल्कुल मुल्हका वाक़ थे। जब वो अपने घोड़े को भगाता हुआ एक तंग घाटी से गुजर रहा था तो एकदम पत्थरों की ओर से नायरा बिनते सालिम नमूदार हुई और आमिर का रास्ता रोक खड़ी हुई। आमिर ने फौरन अपने घोड़े की बाँह खींचते हुए उसे रोक लिया और हैरत से नायरा की तरफ देखते हुए उसने पूछा, नायरा तुम? नायरा पहले कुछ झिझकी, फिर संभलते हुए बोली, उस रोज अपने बाप और भाई की मौजूदगी में मैं अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा ना कर सकी थी। मैं आपके एहसानमंद हूँ कि आपने एक अपसी होते हुए मेरी जान और इज्जत बचाई थी। आमिर ने महसूस किया नायरा की आवाज़ किसी मगबी और मुतरिब की सदा जैसी पुरलुत्फ थी। आमिर ने गौर से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें एहसानमंद होने की जरूरत नहीं है, ये मेरा फर्ज था।
नायरा ने फिर नगम और गीत सी आवाज में कहा, काश आपका ताल्लुक बनो अब से ना होता। आमिर ने पूछा, क्या मेरा अब से होना गुनाह है? नायरा ने बेचैनी की हालत में कहा, यह बात नहीं, सोचती हूँ शायद मैं अपने मोहसिन को फिर कभी ना देख सकूं। आमिर ने उसके सवाल का कोई जवाब न दिया और गौर से नायरा को देखने लगा। नायरा भी उसे इस कदर मीठी निगाहों से देख रही थी। आमिर ने मध्यम और अफसोसदा आवाज में कहा, नायरा नायरा, मेरी जिंदगी के अब दो ही मकासद है। अव्वलन अपने बाप के कातिलों से इंतकाम, सानिन बनो अब्स और बनो ज़ेबान को जंग की भड़कती आग से दूर रखना। अगर मैं दोनों कबीलों के ताल्लुकात इस्तिवार करने में कामयाब हो गया तो शायद मेरे तुम्हारे मिलने की राहें भी इस्तिवार हो जाएंगी। नायरा ने दर्द भरी आवाज में कहा, शायद आप अकेले इस काम को अंजाम ना दे सके। आमिर ने अफसोसदा लहजे में कहा, तो फिर मैं अपने बाप का इंतकाम लेकर हमेशा के लिए अपने कबीले को छोड़ दूंगा। नायरा ने तशवीशनाक लहजे में पूछा, फिर आप कहाँ चले जाएंगे? बहुत दूर, जहाँ तासुब और रुकावत की गर्म भट्टियां ना हो, जहाँ मुसलमान आपस में अमन और सुकून और इत्तिहाद और इत्तिफाक से जिंदगी बसर करते रहे हो। अपने कबीले से निकलकर शायद मैं हलब का रुख करूं कि वहाँ एक बहादुर और शेर दिल मुजाहिद हुक्मरान बन गया है, उसका नाम उमादुद्दीन है। मैं उसके लश्कर में जाकर शामिल हो जाऊंगा। नायरा ने बेताब होकर कहा, मैं पर्दे की ओट में अपने बाप के साथ आपकी पूरी गुफ्तगू सुन चुकी हूँ। अगर आपका चाचा आपसे तंग होकर हो और अगर बनो आपसे आपको बोझ तस्वर करे तो आप सीधे हमारे कबीले आ जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बनो ज़ेबान आप जैसे इदराक मंद और मिजाज आशना नौजवान को ना मुसाअद और ना मुवाफिक हालात और ना इत्तिफाकी और कम तवज्जुह का एहसास ना होने देंगे। आमिर ने देखा नायरा खुश होकर उसके सामने अज़्म और इसार की तस्वीर और वफा का पैकर बनी खड़ी थी। आमिर ने बड़ी नरमी और एहसानमंदी का इजहार करते हुए कहा, नहीं नायरा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं बनो ज़ेबान में चला आया तो दोनों कबीलों के दरमियान रकाबत और तकलीश और बढ़ जाएंगी और मैं अपने रवैये से दोनों कबीलों के दरमियान ऐसी पुरखतर कैफियत पैदा नहीं करना चाहता। जाओ, तुम वापस लौट जाओ, मुझे भी अब चलना चाहिए। नायरा आंखें झुकाए और दांतों में उंगली दबाए कुछ सोच रही थी। यूं लगता था कि उसका सीना राजों से भरपूर और निगाहों किसी जुस्तजू में मखमूर हो। वो कुछ कहना चाहती थी पर ना कह पा रही थी। शायद वो मुनासिब अल्फाज तलाश कर रही थी जिनका सहारा लेकर वो अपने आप को संभाल सके। आमिर ने फिर उसे मुखातिब करते हुए कहा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ आऊं। नायरा ने चौंक कर कहा, नहीं, मैं चली जाऊंगी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आमिर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तो फिर कह दो, तुम रुक क्यों जाती हो? नायरा फिर भी कुछ ना बोली और सोचों में खो गई। आमिर खामोशी से उसे देखता रहा। नायरा के चेहरे पर उसी लम्हे अनोखापन, नदारत, ताजगी छाई हुई थी। आमिर के सामने वो खामोश खड़ी थी और उसके हसीन जिस्म से नाफाए आहूज सी खुशबू उठ रही थी। चंद लम्हों तक वो उसी हालत में खड़ी रही। फिर आमिर की तरफ देखते हुए उसने बड़ी आस और उम्मीद में पूछा, क्या आप तासुब रिकाबत का सागर पार कर सकेंगे? वक्त की धूल को छाड़ और फासलों की जंजीरों को तोड़ सकेंगे? आमिर ने हैरत और परेशानी का इजहार करते हुए कहा, मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? नायरा शायद आनंद के अल्फाज को जमा कर चुकी थी जिनसे वो अपने मद्दा का इजहार करना चाहती थी। लिहाजा इस बार उसने जरा बेबाक होकर कहा, मेरा मतलब है अगर आप दोनों कबीलों के दरमियान हाइल नफरत, अदावत और जंगी जुनून के सागर को पार कर सके तो मैं हर रोज सुंबुल, रिहान, यास्मीन और गुलाब के फूलों से अट्टी जबले बिलाल की इस चोटी पर मगरिब की नमाज के बाद आपका इंतजार किया करूंगी। नायरा ने हाथ से पहाड़ की एक चोटी की तरफ इशारत कर दिया था। आमिर ने बड़े पुरअज़्म और इस बात में कहा, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर और तुम्हारे इंतजार की हिफाजत करूंगा। इसके साथ ही आमिर ने अपने घोड़े को एड़ लगाया और आगे बढ़ गया। नायरा वही खड़ी होकर उसे देखती रही। जब वो उसकी नजरों से इस तरह उछल हो गया जिस तरह सुबह का सितारा शहर के आगोश में छुप जाता है, तो भी मुड़ी और हिरनी की तरफ फैलाती हुई अपने घर की तरफ भाग रही थी। आमिर जब घर दाखिल हुआ तो उसने देखा उसका चाचा घर न था। घोड़े की जेन उतारने के बाद वो उसे बांधकर उस कमरे में दाखिल हुआ जिसमें उरूब और रद्दान बैठे हुए थे। आमिर को देखते हुए दोनों खड़े हो गए। इनमें से किसी ने भी आमिर से ये ना पूछा कि वो कहाँ रहा। शायद वो यही समझ रहे थे कि आमिर अपने बागात में गया हो। उरूब खाना निकाल लाई और तीनों बहन भाई खजूर की चटाई पर बैठकर खाना खा रहे थे। आमिर मुतमईन और खुश था। शायद नायरा बिन्त सालिम के इस अहद पर कि वो कल से जबले बिलाल की चोटी पर मगरिब की नमाज के बाद हर रोज उसका इंतजार किया करेगी। दूसरे रोज आमिर शाम तक कुदाल से अपने बागात में काम कर रहा था। उरूब दोपहर का खाना उसे वही दे गई थी। जब शाम हो गई तो उसने चश्मों के पानी की उस नाली पर बैठकर गुस्ल किया जो उसके बागात से गुजरकर सीधी मगरिब की तरफ चली गई थी।
फिर उसने मगरिब की नमाज अदा की, बाग के अंदर घास चरते अपने घोड़े को पकड़ा और उस पर ज़ेन डालने लगा। सहरा हवाएं तेज हो गई थी। किस्म किस्म के परिंदे अपने खुराक की तलाश करने के बाद अब बनो अब्स और बनो ज़िबान के बागात में जमा होने लगे थे। घोड़े पर ज़ेन डाल चुकने के बाद आमिर पीछे हटा। जो कपड़ा बांध कर उसने गुस्ल किया था उसे खुश्क होने के लिए उसने अनार के एक पौधे पर लटका दिया। कुदाल उसने अंगूर के बेलों के अंदर छुपा दी। फिर वो घोड़े पर सवार हुआ और उसे एड़ लगाई। उसका रुख जबल बिलाल के तवील सिलसिले की उस चोटी की तरफ था जहां नायरा ने मगरिब के बाद उससे मिलने का वादा किया था। आमिर का घोड़ा ही हिलाता हुआ जबल बिलाल की उस चोटी पर चढ़ा। ऊपर जाकर आमिर ने देखा चोटी संबल, रिहान और गुलाब के फूलों के अलावा और कई किस्म के जंगली फूलों से अट्टी पड़ी थी। चोटी के ऊपर जगह जगह बड़े बड़े और वजनी पत्थर पड़े हुए थे। फूलों से घिरी हुई उस चोटी के दरमियान थोड़ी सी खाली जगह थी जहाँ छोटा सा एक चश्मा था जिसका पानी उबल उबल कर बाहर निकल रहा था और फिर चोटी से नीचे उतरकर वो पानी के उस नाले में जा गिरता था जो बागात के वसी रुकबे के सैराब करता था। आमिर ने देखा चोटी खाली पड़ी थी और वहां नायरा का निशान तक न था। आमिर को सख्त मायूसी हुई। उसने सोचा शायद नायरा किसी वजह से न आ सकी हो, लिहाजा वो वापिस जाने के लिए अपने घोड़े की तरफ बढ़ा। एकदम आमिर के कदम रुक गए और उसने फौरन मुड़कर पीछे देखा। उस कोहिस्तानी चोटी पर उसे किसी के कपड़ों की रस भरी सरहाट महसूस हुई। इतने में एक पत्थर के पीछे से नायरा निकलकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर हसन की कमालियत और गुलाबी तबस्सुम था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आमिर की तरफ बढ़ी और खूब अंगेज आवाज में उसने पूछा, क्या आप मायूस होकर लौट रहे थे? आमिर के कल्ब और नजर नायरा की रस भरी आवाज में डूब गए। उसने चौंकते हुए कहा, मैं वाकई लौट रहा था। क्या आपको यकीन था कि नायरा बिनते सालिम आपके साथ कोई झूठा अहद कर सकती है? आमिर भी आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं सिर्फ ये सोचा था कि तुम शायद किसी मजबूरी की वजह से ना आ सकी हो। नायरा ने कमाल हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा, मैं बेशक एक फातिर और कमजोर लड़की हूँ, लेकिन मैं आपको रूहान की जाल में ना फंसने दूंगी। मैं हमेशा आपकी तारीफ की मोहताज और आपकी हिफाजत और अमान की मुंतजिर रहूंगी। आमिर ने आगे बढ़कर नायरा की मरमरी हाथ थाम लिए और नायरा ने कोई मजामत ना की थी। उसका बुलेरी जिस्म कपकपा उठा था। नायरा के हाथों के मस करने पर आमिर को यूं महसूस हुआ गोया उसके हर अर्क हर रग में सनसनी दौड़ गई हो। फिर उसने गायब में इंतहा खुलूस से कहा, नायरा नायरा, मैं मिन हैसुल मजमुआ तुम्हारी तरफ से गाफिल ना होगा। बारिश हो या बरखा, मीना हो या बारान, मैं हर वक्त तुम्हें याद करूंगा और तुम्हारी हिफाजत करूंगा। नायरा ने आमिर का हाथ पकड़ा और उसे पत्थर की तरफ खींचते हुए कहा जिसके पीछे से वो नमूदार हुई थी, आप जरा इधर आइए। आमिर चुपचाप नायरा के साथ खुलिया। पत्थर के पीछे जाकर आमिर ने देखा वहां खाने के बर्तन पड़े हुए थे। नायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। कल मैं आपको खाने पर रोक ना सकी थी क्योंकि आपने कहा था कि आपकी बहन उरूब आपका इंतजार कर रही होगी, लिहाजा मैं खामोश रही। हालांकि कल सारी दावत का इंतजार आपकी खातिर था। आमिर ने खानों की तरफ देखा। उनमें ताज़ा पनीर, खुरमा की खीर जो अभी गर्म थी, बड़े की गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े और करीब एक छोटी छाल पड़ी हुई थी। आमिर ने उसे उठाकर देखा, वो अनार की रस से भरी हुई थी। आमिर ने मुस्कुराकर नायरा की तरफ देखते हुए कहा, ऐसे लजीज खाने देखकर मेरी भूख तेज हो गई है। नायरा ने हंसते हुए कहा, तो बैठ कर खाइए, किसने रोका है? आमिर जमीन पर बैठता हुआ बोला, तुम भी तो आओ। नायरा उससे करीब बैठती हुई बोली, मैं बाबा और भाई के साथ खाकर आई हूँ, ये आपका हिस्सा है। आमिर जब खाना खा चुका तो नायरा ने बर्तन सिमटते हुए कहा, अब मुझे चलना चाहिए, देर हो गई है। आमिर ने पीछे हटते हुए कहा, मैं तुम्हें अल्लाह हाफिज कहता हूँ। नायरा बर्तन लेकर चोटी से नीचे उतर गई। आमिर अपने घोड़े की तरफ बढ़ गया। फिर उसने कुछ सोचा, घोड़े पर सवार हुआ जबले बिलाल की उस चोटी से नीचे उतरने लगा। बाद आमिर वापस घर जाने के बजाय बाएं तरफ मुड़ गया। फिर वो कोई फैसला करके दरिया अपाना के किनारे अपने घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ दमिश्क की तरफ जा रहा था। अपना घोड़ा सर पर दौड़ाता हुआ आमिर दमिश्क शहर में दाखिल हुआ। मुख्तलिफ मोहल्लों और कोचों से गुजरता हुआ वो एक हवेली के सामने रुका और घोड़े से नीचे उतरकर दरवाजे पर दस्तक दी। उसने अपना चेहरा ढांप रखा था ताकि कोई उसे पहचान न सके। थोड़ी देर बाद हवेली का दरवाजा खुला और सामने शहर के साबिक मुहतसिब जमालुद्दीन खड़े थे। आमिर ने चेहरे से नकाब हटा दिया और जमालुद्दीन ने उसे बाजू से पकड़कर अंदर खींच लिया और फिर गले लगाते हुए कहा, तुम कैसे हो बेटे? जवाब में आमिर के होठों पर उस गरम खुश इस्तकबाल पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। जमालुद्दीन ने आमिर को दीवान खाने में बैठाया। फिर उसका घोड़ा अंदर बांध कर दीवान खाने में आए। आमिर के करीब बैठते हुए पूछा, क्या तबीब साहब से तुम्हारी मुलाकात हुई? आमिर ने परेशान लहजे में पूछा, क्यों, क्या हुआ उसे?
जमाल उद्दीन ने फिर पूछा, तुम किस वक्त अपने घर से निकले हुए हो? आमिर ने परेशानी से कहा, सुबह से शाम तक अपने बागात में काम करता रहा और अंधेरा होता इधर चला आया। आप परेशान क्यों हैं? खुलकर बात करें। जमालुद्दीन ने आमिर के करीब होते हुए कहा, सुनो, क्या तुम्हें खबर है कि बनो ज़िबान की बस्ती हुरान के करीब एक ताजिर अपने माल समेत उतरा हुआ है? आमिर ने परेशान लहजे में कहा, हाँ उतरा हुआ है, मैं उसे जानता हूँ, उसका नाम नसर बिन असद है और बनो ज़िबान के सरदार सालम बिन अलकमा के घर मेरी उसकी मुलाकात भी हो चुकी है। जमालुद्दीन ने फिक्रमंद आवाज में पूछा, ये बातें मुझे साद पहले बता चुका है। मैं तुमसे कहने वाला था कि ताहिर अल-मरज़गानी के आदमी आज रात के पिछले हिस्से में उस तिजारती कारवान को लूटने की कोशिश करेंगे। अगर हो सके तो तुम किसी तरह उस कारवान की हिफाजत का इंतजाम करो। यही पैगाम साथ को लेकर मैंने तुम्हारी तरफ रवाना किया था। शायद वो तुमसे मिल नहीं सका, तुम पहले ही घर से निकल गए थे। आमिर अपनी जगह पर खड़ा होगा। फिर जिस काम के लिए मैं आया हूँ मुझे वो कर फौरन वापस लौटना चाहिए। जमालुद्दीन ने इस्तिफसार पूछा, किस काम से आए हुए थे तुम? मैं आज सिकलाज के घर शब खुद मारूंगा। पहले मैं उसका जूता उठाकर तस्दीक करूंगा कि वही मेरे बाप का कातिल है। जमालुद्दीन भी खड़े होते हुए बोला, एहतियात बरतना, अगर तुम कहो तो मैं कुछ जवानों को तुम्हारी मदद के लिए रवाना करूं। गो मैं इस वक्त शहर का मुहतसिब नहीं हूँ, फिर भी कुछ मुखलिस कारकुन मेरे साथ है। आमिर ने फिर पूछा, शहर का मुहतसिब आपके बाद किसे मुकर्रर किया गया है? इन दिनों मुहतसिब के फराइज भी ताहिर अल-मरज़गानी ही अंजाम दे रहा है। उसकी शख्सियत इन दिनों कुछ मशकूक है। ये दूसरी बार है कि उसने अपने चंद साथियों को ईसाइयों के शहर सुवर रवाना किया है। मैंने भी अपने चंद मुखलिस कारकुनों को कह दिया कि वो इस अमर का खोज लगाए। सुवर शहर में जो अल-मरज़गानी के आदमी गए हैं उनकी गर्ज व गायत क्या है? मैंने इमाम यूसुफ और दमिश्क के हुक्मरान बूरी के दोनों भाइयों को भी इस सूरत हाल से आगाह कर दिया है और वो पूरी तरह मेरा साथ दे रहे हैं। आमिर ने मुसाफा के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे अब इजाजत दीजिए। अपने काम से फारिग होकर मुझे वापस जाकर नजर बिन असद की तिजारती कारवान की हिफाजत का इंतजाम करना चाहिए। वो एक नेक दिल और मजहब परस्त इंसान है, उसकी हिफाजत भी एक मुसलहत से कम न होगी। जमालुद्दीन पीछे हटते हुए बोले, ठहरो, मैं तुम्हारा घोड़ा लाता हूँ। जमालुद्दीन दीवान खाने से निकलकर आमिर का घोड़े ले आए। फिर दोनों ने मुसाफा किया। आमिर अपने घोड़े पर सवार हुआ और उसे एड़ लगाकर आगे बढ़ गया था। बाजार से गुजरने के बाद आमिर एक कोचे में दाखिल हुआ। एक मकान के करीब उसने अपने घोड़े को एक दरख्त के साए तले खड़ा किया और फिर उस मकान की दीवार फांदकर अंदर कूद गया। कूदते वक्त जो उसके जूतों के नक्श बने पहले उसने वो मिटाए, फिर वो पंजों के बल चलता हुआ आगे बढ़ा। एक ज़राहिदी नुमा तवील बरामदे में कुछ लोग सोए हुए थे और एक कोने में छोटी सी एक मशगल रोशन थी। आमिर दीवारों के साइड की ओर में आगे बढ़ा। उसने सोने वालों को बगौर देखा, उनमें सकलाज भी था। आमिर ने आगे बढ़ा, आवाज पैदा किए बगैर जो ही चारपाई के करीब पड़े हुए वो सकलाज के जूते उठाने लगा। सकलाज ने एक करवट की। आमिर को खदशा हुआ कहीं सकलाज जाग न जाए, लिहाजा वो उसकी मसहरी के नीचे घुस गया। जब उसने महसूस किया कि सकलाज पुरसुकून होकर फिर सो गया है तो दोबारा बाहर निकला। सकलाज के दोनों जूते उठाकर उसने बगल में दबा लिए। फिर जिस तरफ से आया था उधर ही मुड़ा। पंजों के बल कूद कर वो दीवार फांद कर दूसरी तरफ गया जहां वो गिरा था। वहां पहले हाथ फेर कर अपने पांव के नक्श मिटाए। फिर उठकर उसने इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था, हर तरफ सुकून था। हाँ, कभी कभी कहीं कहीं से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ जाती थी और बस। आमिर अपने घोड़े पर सवार हुआ और उसे सर पर दौड़ाता हुआ शहर से निकल गया। आसमान की अमन बदोश नीलाहटों पर चांद अपनी पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। आमिर दरिया अबाना के किनारे अपने घोड़े सर पर दौड़ाता हुआ जा रहा था। रात गहरी होने लगी थी। जंगल में झिंगुरों की आवाजों ने एक समा बांध रखा था, जैसे वो अपने पूरे वजदान और उफान में नगमे गा रहे हों। अपनी बस्ती की तरफ जाने के बजाय आमिर बनो ज़िबान की बस्ती हुरान की तरफ मुड़ गया था। अब वो उस पगडंडी पर घोड़ा दौड़ा रहा था जो दरिया के किनारे पगडंडी से निकलकर बनो ज़िबान की तरफ चली गई थी। थोड़ी ही देर बाद आमिर बनो ज़िबान के सरदार सालिम बिन अलकमा की हवेली के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। उसने बस्ती में जो गैर मामूली तब्दीली महसूस की वो ये थी कि बस्ती के तकरीबन सभी घरों में खूब रोशनी हो रही थी। हालांकि रात काफी जा चुकी थी। ऐसा लगता था बस्ती के लोग कहीं खोज कर जाने की तैयारी में हो। थोड़ी देर बाद हवेली का दरवाजा खुला और सामने नायरा खड़ी थी। आमिर को देखते हुए उसने हैरत और परेशानी का इजहार करते हुए कहा, आप कहाँ थे? मैं, बाबा और वलीद भाई आपके मुतालिक परेशान थे। दमिश्क से साथ आपके लिए पैगाम लेकर आया था। वो साबिक मुहतसिब जमालुद्दीन की तरफ से कोई अहम पैगाम था। वो सीधा आपकी बस्ती गया, फिर हमारे यहाँ आया था।
उसने यहाँ आकर बाबा को बताया था कि आप सुबह से अपने घर से निकले हुए हैं और लौट कर नहीं गए। साथ कह रहा था कि आपकी बहन उरुप और भाई अदनान आपकी इस अचानक रूपोशी पर सख्त परेशान और अफसोदा थे। आप आमिर ने दरमियान में बोलते हुए कहा, मैं दमिश्क गया हुआ था और अब वही से लौट आ रहा हूँ। मुझे वो अहम पैगाम मिल गया है। तुम्हारे बाप और भाई कहाँ है? दमिश्क से साथ पैगाम लेकर आया था कि ताहिर अल मरज़गानी के आदमी आज रात नसर बिन असद की तिजारती कारवान पर शब खुर मारेंगे। बाबा और भाई बस्ती के सैकड़ों जवानों के साथ कारवान की हिफाजत के लिए जा चुके हैं। साथ भी उनके साथ है। आमिर ने घोड़े का रुख मोड़ते हुए कहा, मैं भी उनकी तरफ जाता हूँ। फिर वो घोड़े पर सवार होकर जब उसे ईड़ लगाने लगा तो नायरा ने जैसे चौंकते हुए कहा, ठहरिए, मेरी बात सुनिए। आमिर रुक गया। नायरा ने इस्तिफहामिया लहजे में पूछा, आप दमिश्क क्या करने गए थे? आमिर ने घोड़े को ईड़ लगाते हुए कहा, ये मैं फिर तुम्हें बताऊंगा। इस वक्त मुझे फौरन नजर बिन असद के कारवान में पहुंचना चाहिए। आमिर घोड़े को दौड़ाता हुआ जब गली का मोड़ मोड़ कर नायरा की निगाहों से उछल हो गया तो नायरा ने हवेली का दरवाजा बंद कर लिया। अपने घोड़े को सर पर दौड़ाते हुए आमिर जब नसर बिन असद के तिजारती कारवान के नजदीक पहुंचा तो एकदम एक चीखती हुई आवाज उसके कानों से टकराई। ठहरे, कौन हो तुम? आमिर ने फौरन अपने घोड़े को रोक लिया। थोड़ी ही देर बाद चंद जवानों ने उसे घेर लिया। आमिर ने चांदनी में देखा, वो सब ज़ेबानी जवान थे। उन्होंने भी वलीद को पहचान लिया, इसलिए कि उनमें से एक ने आमिर को मुखातिब कर कहा, सरदार सालम बड़ी बेचैनी से आपका इंतजार कर रहे हैं। वो इस वक्त नसर बिन असद के खीमे में है। आप जब कारवान में दाखिल हो और जिस खीमे में आपको रोशनी दिखाई दे वही नजर बिन असद का खीमा होगा। अपने घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ आमिर फिर आगे बढ़ गया था। उस खीमे के सामने आमिर ने अपने घोड़े को रोक लिया जिसमें रोशनी हो रही थी। जब वो घोड़े से उतरकर खीमे की तरफ बढ़ा तो उसने देखा वो चमड़े का एक बहुत बड़ा खीमा था जिसमें एक मशगल रोशनी थी और खीमे में नसर बिन असद और सालम बिन उक़बा के अलावा नकीब बिन हुर्रा, वलीद बिन सालम और तबीब साद बिन बकर बैठे हुए थे। आमिर जब खीमे दाखिल हुआ तो सब खड़े हो गए। सालम बिन उक़बा ने आगे बढ़कर आमिर को निपटाते हुए पूछा, तुम कहाँ चले गए थे बेटा? मैं तुम्हारे मुतालिक सख्त फिक्रमंद था। आमिर ने बारी बारी सबसे मुसाफा किया। बाद में कहा, मैं अपने बाप के कातिलों की तलाश में दमिश्क गया हुआ था। वहाँ जमालुद्दीन से खबर हुई कि अल मरज़गानी के आदमी मेरे मोहतरम नजर बिन असद के कारवान पर हमलावर होना चाहते हैं, तो मैं जल्द लौट आया। मैं सीधा आपकी हवेली गया था। वहाँ नायरा ने बताया कि आप सब यहाँ हैं, तो मैं भी इधर चला आया। सालम बिन उक़बा ने दिलचस्पी का इज़हार करते हुए कहा, क्या तुम्हारे बाप के कातिल तुम्हें मिल गए? आमिर ने तेज लहजे में कहा, मुझे अपने बाप के कातिलों के सिर्फ जूतों के नक्श याद है। जिस आदमी पर मुझे शक था आज मैं उसके जूते उठाकर लाया हूँ। पहले मैं उन जूतों से तफ्तीश बनाकर नक्श बनाकर देखूंगा। अगर ये उसमें मुताबिक रहे जो मेरे जहन में है तो मैं उस शख्स को कत्ल कर दूंगा जिसके मैंने जूते लाया हूँ। लेकिन ये बातें तो बाद में करनी है। पहले मुझे ये बताइए कि आपने क्या हिफाजती इंतजाम किए हैं। एक बार फिर सब बैठ गए। नकीब बिन हुर्रा ने आमिर को अपने साथ बैठने को जगह दी। फिर सालिम ने आमिर की तरफ देखते हुए कहा, पूरे कारवान के इर्द गिर्द मुसल्ह आदमी बैठाने के अलावा हमने उस पगडंडी के साथ साथ भी अपने आदमी बैठा दिए हैं जो दरिया की तरफ से इधर आते हैं। आमिर ने तेज निगाहों से सालिम की तरफ देखते हुए कहा, ऐसे में आपकी अपनी बस्ती तो गैर महफूज रही ना? सालिम ने सवाल अंदाज में पूछा, हमारी बस्ती को क्या खतरा लायक हो सकता है? आमिर ने फिक्रगीर आवाज में कहा, अगर उनको खबर होगी कि कारवान की हिफाजत का इंतजाम हो चुका है तो कारवान के बजाय आपकी बस्ती हुरान में भी घुसकर लूट मार और तबाही का बाजार गर्म कर सकते हैं। मैं अल मरज़गानी के सब साथियों को जानता हूँ, उनमें अक्सर इस्माइलियों की है। ये लोग जंगजू होने के अलावा इंतहाई अय्यार, लामज़हब, बेदीन और तमाह है। उनसे हर बुरे फेल और ऐबदार अमल की तौक़ी की जा सकती है। सालिम बिन उक़बा ने ऐसे अंदाज में नसर बिन असद की तरफ देखा जैसे वो खामोशी की जुबान में उसे कह रहे हों, हम भी कैसे अहमक हैं जिन्होंने बस्ती की सलामती का ख्याल ही नहीं किया। फिर सब ने आमिर की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे अंदाजे दुरुस्त हैं बेटे, हम में से किसी को भी बस्ती का ख्याल नहीं रहा था। जंगी मुमारसत में तुम हम सबसे बेहतर और रफा हो। फिर सालिम ने अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहा, वलीद तुम कुछ जवानों के साथ लेकर बस्ती की हिफाजत के लिए चले जाओ। वलीद उठकर जब बाहर निकल गया तो आमिर ने सालम और नजर की तरफ देखते हुए कहा, आप दोनों बुजुर्ग खीमे में रहिए, मैं और नकीब उन जवानों में शामिल हो जाते हैं जो दरिया की तरफ से आने वाले पगडंडी के अतराफ में फैले हुए हैं। साद भी उसके साथ रहा। साद बिन बकर फौरन खड़ा होता हुआ बोला, मैं तबीब जरूर हूँ लेकिन बुनियादी तौर पर मैं एक सिपाही हूँ। खीमे के अंदर पड़े रहने के बजाय मैं उन लुटेरे और रहजनों से जंग करूंगा। ये एक साजत है जिससे मैं अपने आप को महरूम नहीं रखना चाहता। सालम और नजर के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी।
आमिर, नकीब और असद उठ कर बाहर निकल गए थे। आमिर, नकीब और साद अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए मशरिक की तरफ आने वाली पगडंडी के अतराफ में उस जगह आए जहाँ खुलिस्तानी सिलसिले की छोटी छोटी चट्टानों कोट में बनो ज़ुबान के घुड़सवार पहरा दे रहे थे। वो तीनों भी उनमें शामिल हो गए थे। चट्टानों के अंदर वो सब इंतजार कर रहे थे कि आधी रात के बाद दरिया की तरफ से उन्हें तेज टापों की आवाज़ सुनाई दी। आमिर ने चौंकते हुए नकीब से कहा, नकीब अपने साथियों को तैयार कर दो। उन्हें ये भी बता दो कि जब अलमरज़गानी के आदमी उनके पास से गुजर जाए तो तकबीरें बुलंद करते हुए उनकी पुष्ट पर हमला कर दे। इसके दो फायदे होंगे, एक तो वो रहजन उससे अचानक हमले पर बौखला जाएंगे, दूसरी तकबीर की सदा सुनकर कारवान के इर्द गिर्द और तुम्हारी बस्ती के अतराफ में पहरा देने वाले जवानों को भी खबर हो जाएगी कि हमला हो चुका है, लिहाजा वो भी इधर का रुख करेंगे और ऐसी सूरत में हमलावरों से बहुत थोड़े वक्त में निपटा जा सकेगा। नकीब उठा और जिस तरह आमिर ने उसे कहा था उसी तरह उसने अपने जवानों से को समझा दिया। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने देखा हमलावर सवार उनके पास से गुजरे थे। वो तादाद में 60 या 70 के लगभग हो गए। जो ही वो थोड़ा सा आगे बढ़े, आमिर, नकीब और साथ में बनो ज़ुबान के सवारों के साथ उनकी पुष्ट पर हमला कर दिया। साथ ही आमिर की हिदायत के मुताबिक जोर की तकबीरें बुलंद की गई जिससे हमलावर बौखला गए थे। चंद सानियों की जंग के बाद कारवान के गिर्द पहरा देने वाले और बस्ती की हिफाजत पर मामूर जवान भी वहां आ गए और सबने चारों तरफ से घेर कर ताहिर अलमरज़गानी के सारे साथियों को तहत कर दिया। उनमें एक भी अपनी जान बचाकर ना भाग सका। चांदनी रात में इधर उधर लाशें बिखरी हुई थी और सवारों के बगैर घोड़े इधर उधर हिनहाते फिर रहे थे। कोई ऐसा शख्स ना बचा था जो इस इबरत खेज वाक़ई को इत्तला अलमरज़गानी को करता। सालिम बिन उक़बा और नज़र बिन असद के खीमे से निकलकर उस जगह आए जहाँ जंग हुई थी। वहाँ आमिर, नकीब और साद वलीद बस्ती के दूसरे जवान अपनी खून आलूद तलवारें साफ कर रहे थे। जब वो दोनों नजदीक हुए तो आमिर ने सालिम से कहा, अगर आप पसंद करें तो मैं एक तजवीज़ आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सालिम ने आगे बढ़कर उसके शाने पर हाथ रखते हुए कहा, तुम एक बहादुर और शेर दिल फर्जंद हो। तुम्हारी हर तजवीज़ हमारे लिए अमल करने का आखिरी फैसला होगी। कहो तुम क्या कहना चाहते हो। आमिर ने अपनी तलवार नियाम में करते हुए हमलावरों के घोड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरा इरादा कि आप ये घोड़े मेरे मोहतरम नसर बिन असद के हवाले कर दे। इन्हें बेचकर अपने इन सरहदी मुजाहिदों की कुव्वत में इजाफा करें जो ईसाई हमलावरों से मुसलमानों की हिफाजत करते हैं। सालिम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने ये घोड़े नसर बिन असद के हवाले किए। नजर बिन असद आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और आमिर को गले लगाते हुए कहा, नाफिक के बेटे, तुम मिल्लत का दर्द रखने वाले एक ऐसे फर्जंद हो जिस पर बहुत कुछ कुर्बान किया जा सकता है। काश मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता। मेरे पास वहाँ चंद जो जवानों की कमी है, लेकिन मुझे किसी ऐसे सालार की जरूरत है जो सरहदी मेरे वहाँ जंगजू जवानों की कमी नहीं है, लेकिन मुझे किसी ऐसे सालार की जरूरत है जो सरहदी मुसलमानों को आला तरबियत देकर ईसाई हमलावरों के सामने सीसा फौलाद, बिजलियों का कहवार और हमलों का एक बेकिरार सिलसिला बनाकर रख दे। काश तुम अपने बाप का इंतकाम लेकर फारिग हो चुके होते और मैं तुम्हें अपने साथ चलने पर मजबूर कर सकता। मेरे कारवान के मोहसिन, मैं एक बार फिर तुम्हें अपनी बस्ती अस्फीरा की तरफ आने की दावत देता हूँ। अगर हम दोनों वहाँ ईसाई हमलावरों के आगे एक मजबूत हिसार खड़ा करने में कामयाब हो गए तो एक कौम की बेहतरीन खिदमत होगी। आमिर ने खाइल सी आवाज में कहा, मेरा दिल कहता है कि एक रोज मैं जरूर आपकी तरफ आऊंगा। अब आप फौरन यहाँ से कूच कर जाइए। अगर ताहिर अलमरज़गानी को खबर हो गई कि उसके सब साथी मारे गए तो आपके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करने के लिए उठ खड़ा होगा। सबने मिलकर सबसे पहले हमलावरों की लाशों को गड़े खोद कर जमीन में दबा दिया। उसके बाद नजर बिन असद ने सबसे मुसाफा किया और अपने कारवान के साथ शुमाल मगरिब की तरफ कूच कर गया था। आमिर जब घोड़े पर सवार होने लगा तो सालिम ने पूछा, तुम अब कहाँ जाने लगे हो। आमिर ने रुका में पाँव जमाते हुए कहा, मैं पिछली सुबह का घर से निकला हुआ हूँ, अब मुझे चलना चाहिए। सालिम ने बड़ी शफकत से कहा, रात हमारी बस्ती में ही रहो, सुबह होते ही चले जाना। तुम्हारे लिए एक नई खबर यह है कि साद बिन बकर ने दमिश्क वापस जाने के बजाय हमारे कबीले में रहने का इरादा कर लिया है। आमिर ने गौर से साद की तरफ देखते हुए पूछा, क्या ये दुरुस्त है। साद ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दुरुस्त है। मैंने तुम्हें अपना भाई कहा था, जब तुम ही दमिश्क में नहीं रहे तो मैं अब वहां रहकर क्या करूंगा। आमिर ने फिर पूछा, यहाँ तुम किसके पास रहोगे। काश मेरे घरेलू हालात दुरुस्त होते और मैं तुम्हें अपने साथ अपने कबीले में रख सकता। साद की जगह सालिम ने कहा, नकीब अपने घर में अकेला रहता है, इसका कोई बहन भाई नहीं, इसके माँ बाप भी मर चुके हैं। साद अब नकीब के साथ रहेगा। आमिर घोड़े पर सवार हुआ, एक अलवदियाई निगाह सब पर डाली और अपने घोड़े को ये लगाकर शुमाल की तरफ बढ़ गया था।